हाँ वो तो 10 में है। हाँ, पता है पता है। अभी अच्छा। देखी, पूछी मैं। ओ, वो भी तुम्हारे स्कूल का ही है। हाँ, इसी एरिया में रहता है, तो घर के बगल में ही। अच्छा। उसके ओके। भाई भाई और मैं, हम लोग वो सेम बस में थे ना। अच्छा। So a proposition are also called proposition are also called sentences or statements. Statement. Okay. So यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। Terms and symbols. Symbols. So यहाँ पे there are two types of proposition. One is simple proposition and another one is compound proposition. ओके। Right? So the first is simple proposition. POS. Proposition is one that does not contain any other proposition. Any other proposition as a part. Right? We will use lowercase letters lowercase letters lowercase letters like P Q R, right, dot dot dot, as symbols for simple propositions. Next is compound proposition. Compound proposition is one with two or more simple propositions as a part as parts, or what we call components, or what we call components, right? So a component of a compound, a component of a compound component of a compound component of a compound is any whole proposition that is a part of larger proposition, part of large proposition. And a components themselves be compounds. So for example, following are the following are compound propositions. Following are compound propositions.
It is raining. It is raining and wind is blowing and wind is blowing, right? और ले लेते हैं take it or leave it. और ऐसा कुछ भी हो सकता है. If you work hard, then you will be rewarded. You will be rewarded. So इस टाइप के कुछ sentences होते हैं. Okay. So these are basically compound sentences, and here you can see that ki there are something like and is there, or is there, then is there, right? If then, ये जो tool है ना इसको हम लोग बोलते हैं if then, right? And or, right? Not is also there. Okay. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Operators. We call them operators. Okay. Or connectives. Right? So compound is associated with operators or connectives. So an operator or connective joins simple propositions into the compounds and join compounds into larger compounds, right? So we will use the symbol, or we use symbols like plus, dot, arrow, and this is called by implication to designate the centennial connectives. Okay. Centennial, centennial, connectives. Because they join sentences. They join sentences or they join propositions. So और भी symbols हैं, जैसे एक और symbols बताता हूँ, याद आ गया. This is not, right? ये एक symbol है. So there are symbols, right? So one by one we visit, right? So the first symbol is called disjunctive or, right? So different types of connectives we study here. Types of connectives. So first is disjunctive. Disjunctive. Also called or, represented by
represented by plus or this V symbol, small v, right? V symbol. Disjunction means disjunction means disjunction means basically disjunction means one one of the argument, right? Disjunction means basically one of the statement is true. Disjunction means one of the statement or preposition is true. It works with more than one preposition. More than one preposition. It works with more than one preposition. Fine. So that is called disjunctive. The truth table is also very much simple. Okay. Anushka, just a minute. My sir is calling. Just a minute, huh? Yeah. হ্যাঁ স্যার বলুন। ও দেখছি স্যার আমি দিদার বাড়িতে আমি ওকে ও তাহলে ও বসে বসে ইয়ে দেখছে কি বলে কার্টুন দেখছে ল্যাপটপের মধ্যে বদমাইশ আছে না ডান্ডা মারতে সেদিনকে চট থাপ্পড় পড়লো ঠিকঠাক ছিল এক উইক না না সে বুঝে মারতে হয় আমি সেটা জানি কখন কি দিতে হয় অনেকদিন পরে ৩-৪ মাস পরে একবার করে দিতে হয় তখন ৩-৪ মাস ঠিক থাকে হ্যাঁ 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 ওটাও হতে পারে স্যার সঙ্গীতাও অ্যাক্টিভ থাকতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ ওর ফোন ঠিক হয়েছে হ্যাঁ ফোনটা নিয়ে গেছে ওটাকে আবার কি ক্যালিব্রেট করলো ওটা মানে মনে হয় ওই সার্কিটটা লাগানোর পরে ওটাকে ক্যালিব্রেট করেনি ওই জন্য ওটা প্রবলেম হচ্ছিল তো তো ওটা নিয়ে গেল আবার চাঁদনি চক ছুটতে হলো সময় নষ্ট ওটাকে আবার ক্যালিব্রেট করলো এখন ঠিকঠাক আছে কথাবার্তা বলা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমি একবার ফোন করে দিচ্ছি ওকে ঠিক আছে हेलो हाँ हेलो हाँ बोला था सर फोन कर रहा था बच्चा को क्लास के लिए बोला था सर फोन कर रहा था बच्चा को क्लास के लिए बच्चा को बोलो कर ठीक ठीक है रखते हैं फिर हेलो हेलो
हाँ सर, हाँ सर। हाँ इसका चलो फिर आगे पढ़ते हैं। डिसजंक्शन प्रपोजिशन, इट वर्क्स विथ मोर देन वन प्रपोजिशन। ठीक है ना। ठीक तो है। हम लोग जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर एक प्रपोजिशन P है एंड दूसरा जो प्रपोजिशन है वन इज P एंड दूसरा जो है अगर Q है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q। ठीक है ना। ये एक ठीक। तरीका है। नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करके। एग्जाम में ना वो लोग कंफ्यूज करने के लिए बच्चा लोग को ये वाला सिंबल यूज़ करता है टीचर लोग, P और V Q। इसका मतलब भी सेम होता है। ठीक है। सेम। ओके ओके। ये वाला सिंबल वो लोग यूज़ करने लग जाते हैं। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ तो फिर ठीक रहेगा। ये यूज़ करता है। ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे है, ट्रूथ टेबल में इसका ऐसे बना लेते हैं। तो इसका बनाते हैं P और Q, और इसका बन जाएगा P V Q। ठीक है ना। सेम है एकदम, और गेट के जैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 0 से ही करता हूँ तो इजी रहेगा समझना। 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। तो 0 0 आंसर आ जाएगा 0 फॉल्स, 0 1 0 1 आंसर आ जाएगा 1। 1। फिर नेक्स्ट है 1 0 0 आंसर आ जाएगा 1। और फिर नेक्स्ट है 1 1 1 1 आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन, राइट। ओके। नेक्स्ट है ये जो है वो है कंजंक्शन। जंक्शन और एंड। द एंड द द एंड एंड connective also work with more position, more than one. The compound P dot Q, right? P dot Q or P and Q, P एंड क्यू। and Q, ये यूज कर सकते हैं। इसका एक और सिंबल है, और P, ये वाला जो सिंबल है ना, ये भी एंड के तौर पे यूज किया जाता है। ओके। ये ध्यान रखने का बात है, बस ये दिया हुआ तो एंड, और वो वी होगा तो और, बस ये ओके। ध्यान रखना है। विल बी ट्रू, विल बी ट्रू, लॉजिक सेम है। विल बी ट्रू whenever both whenever both P and Q are true, P and Q are true। ये हो गया प्रोपोजिशनल लॉजिक का। और फिर इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। सो P और फिर Q, P Q, सो P Q, और यहाँ पे डाल देते हैं P एंड Q। यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 0 1 फिर 0, यहाँ पे 0
गलत हो गया, 1 0 1 और यहाँ पे 0, 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो यही है ये वाला चीज। ये हो ठीक गया है। कंजंक्शन। एक और होता है निगेशन, नंबर सी में होता है निगेशन। निगेशन लोग नॉट बोलते हैं, विल कॉल देम नॉट। देखते हैं द नॉट, द नॉट negation, the not operator works on single proposition, ठीक है ना। it works on single proposition, thus also called unary connectives sometimes, thus also called unary, 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 times if P denotes a proposition, if P denotes a proposition, then its negation, then its negation, then its negation will be denoted by by, by P or P dash or P dash or देयर इज समथिंग कॉल्ड पी बार ऑल्सो। पी बार भी हम लोग बोलते हैं, बट वो कीबोर्ड में कैसे लिखेंगे पता नहीं, तो बस यही यहाँ तक ही रहने देता हूँ। राइट, पी बार भी होता है, हाँ। और इससे लिख लेता हूँ, पेन है ना मेरे पास, और पी बार, हाँ ये एक इजी चीज़ है, पी बार, राइट। सो इफ पी इज 0, if p is if p if p is 0 or false, p bar is 1, right, or true। फिर बना लेते हैं p और p बार, p एंड p बार। तो p में अगर 0 डालेंगे तो वी गेट p बार में 1, एंड इफ वी पुट हियर 1 वी गेट 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो दिस इज निगेशन। अब एक और चीज़ है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर डी is called implication. I am is called implication. implication, implication. That is called if then। इसको हम लोग बोलते हैं if then। और इसका एक दूसरा नाम है कंडीशनल। अच्छा। कंडीशनल, राइट। तो ये होता है इन द कंडीशनल, इन द कंडीशनल, कंडीशनल P implication Q, P implication Q, the first proposition, the first society and proposition is called the antecedents,
the antecedent. And the second proposition, proposition or second proposition means then clause. Then clause Q here is called, उसका नाम क्या था, called the consequent. उसका नाम था consequent, right? तो हम लोग ये यूज करते हैं. सो इन मोर कॉम्प्लेक्स, more complex conditionals, the antecedents and consequents, the antecedents antecedents and the consequence could themselves be a compound propositions. Be a compound propositions. अच्छा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो अभी लिखने वाला हूँ, तो इसको बोल्ड में लिखता हूँ. द कंडीशनल, ये काम का चीज है. द कंडीशनल P implication Q will be false when P is true and Q is false, for all other input combination all other input combinations, it will be true. कंडीशनल में तो इधर और नीदर नॉर वो सब भी आता होगा. नहीं, ये एक सिंबल है, राइट? अच्छा. इसमें ये जो लाइन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द कंडीशनल P इम्प्लीकेशन Q विल बी फॉल्स. ये तभी फॉल्स होगा जब P ट्रू होगा एंड Q फॉल्स होगा, और दूसरे जो इनपुट कॉम्बिनेशन है ना उसमें ये ट्रू रहेगा. ठीक है, मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा. तो ट्रूथ टेबल इसका कुछ ऐसा बनाते हैं. P और Q और P और P इम्प्लीकेशन Q. ठीक है ना. तो ये इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा इस तरीके से कि 0, फिर यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे, देन यहाँ पे हम लोग 1 डालेंगे तो आंसर विल बी 1. फिर यहाँ पे हम लोग 1 डालेंगे एंड यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे, तब आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है, 1 डालेंगे एंड 1 डालेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1. ठीक है, ये इस तरीके से कुछ काम करता है, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q. ठीक है ना. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आउटपुट 0 आया ना उसको लेकर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आउटपुट 0 आया, इसी को हम लोग लेंगे, यही वाला रो को लेंगे हम लोग. तो इसमें हमने को मिल रहा है P प्लस Q बार. क्या मिल रहा है अपने को? P प्लस Q बार. जब हम लोग 0 रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हम लोग प्लस यूज करते हैं, डॉट यूज नहीं करते, राइट? यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन वी
use 0 as 0 as 0 as output from the truth table, right? We use max terms, right? And it is represented by plus. max term means plus, right? एंड पहले हम लोग जो यूज कर रहे थे ना उसको हम लोग बोलते हैं मिनटर्म्स, जो हम लोग एक्स और गेट में किए थे उसको हम लोग बोलते हैं मिनटर्म्स, और उसमें डॉट यूज होता है। समझ में है? देखिए यहाँ पे ऊपर में चला आते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ पे बच्चा लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा। तो यहाँ पे देख, हम जब ये वाला सब यूज कर रहा था ना, यहाँ पे देख डॉट है, ये क्या है? डॉट है, प्लस नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिन टर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? मिन टर्म्स। बात ये है कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो 12 में है, ठीक है? बट ये एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, इसको पहले पढ़ा के फिर ये पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पढ़ा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिन टर्म्स जो है ना, मिन टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं डॉट। क्या यूज करते हैं? डॉट। ठीक है, क्योंकि हम मिन टर्म्स में हम लोग आउटपुट में वन वाला रो लेते हैं, वन वाला रो लेते हैं। और मैक्स टर्म्स में हम लोग आउटपुट में जीरो वाला रो लेते हैं, जिसका आउटपुट में जीरो आया है। ठीक है ना? हाँ हाँ। ठीक है, बस ये बट डिफरेंस याद रखना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या हुआ? वेयर वी आर हियर। तो यहाँ पे वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस वन एज एन आउटपुट, वी आर कंसिडरिंग दिस जीरो एज आउटपुट। तो ये एक फॉर्मूला है, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q जहाँ पे दिखेगा, दैट इज इक्वल टू P प्लस क्यू बार, आपको बिठा देना है और फिर बुलियन लॉज यूज करना शुरू कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया चीज? हाँ। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर ई। और ई है नंबर ई है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, एंड ओनली इफ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे IFF से भी, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई कंडीशनल। तो in the so a biconditional results biconditional results into false, results into false when one of the component is true, when one of the component is true and the other is false, and the other is false. That is P। बाई कंडीशनल का सिंबल ऐसा होता है, बाई कंडीशनल Q will be false or zero when P is zero, P is zero, P is zero, and Q or and Q is one, and Q is one, and Q is one, or 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 P is one, P is one, and Q is 0, and Q is 0. For all other inputs, right? For all other inputs,
P implication Q is 1. Implication Q is 1. फाइन, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Okay. So P, then P implication Q, and so 0 0. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बिकॉज बोथ द इनपुट्स आर सेम. और यहाँ पे है 0 और 1, तो डिफर कर रहा है दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. ठीक है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0. फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन P इज इक्वल टू Q, मतलब जब P का वैल्यू when P and Q both are same, right, when P and Q both are same, the output is high, the output is high. ठीक है, otherwise low, otherwise low. ठीक है. हाँ. ठीक है, तो अगर हम लोग इनका हम लोग अगर ज़ीरो वाला आउटपुट लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ज़ीरो वाला आउटपुट लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Okay. तो हम लोग वो लेते नहीं है, हम लोग ऊपर वाला लेते हैं. ठीक है ना, 1 वाला लेते हैं. तो 1 वाला का मतलब हो गया मिन टर्म. ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा P बार डॉट Q बार, और यहाँ पे आ जाता है PQ. क्या आ जाएगा? PQ. ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में ना मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया, मैं इसको ठीक करता हूँ थोड़ी देर में. हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक. ठीक. तो इसका आंसर आ जाएगा P बाई कंडीशनल Q, अगर ये है तो दैट इज इक्वल टू P बार डॉट Q बार प्लस PQ. ठीक है, समझ में आया? तो ये इसका फॉर्मूला है. तो कभी कभी क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि इससे इसमें कन्वर्ट करो और इससे इसमें कन्वर्ट करो, तो ये हम लोग यूज करेंगे ये वाला टर्मिनोलॉजीज. ठीक है. अच्छा, अब मैं ऊपर आता हूँ. यहाँ पर ना हम लोग मैक्स टर्म्स यूज कर रहे थे. तो मैक्स मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में एक और डिफरेंस है कि मैक्स टर्म्स में जो जो वेरिएबल 1 है ना, 1 इज बार्ड. ठीक है, 1 बार्ड होता है, 0 इज नॉट बार्ड. बार्ड. ठीक है, तो ये वाला केस में 1 जो है ना वो बार्ड होगा और Q बार जो है ना वो अनबार्ड होगा. ओके ठीक है, ओके. तो इसका जो ये फॉर्म है ना वो चेंज हो जाएगा. ये P बार और ये Q बार हटाना पड़ेगा अपने को. तो Q बार. ठीक है, समझ में है? तो ये चीज़ याद रखने वाला बात है यहाँ पर. अच्छा अच्छा. समझ में? ऑरेंज लिया हुआ था मैंने. हाँ, ठीक है. तो ये वाला हम बात बताना हम भूल गया था. इसमें भी अगर हम लोग 0 0 वाला ले लेता ना तो हम लोग को ऐसा मिल जाता. अगर हम लोग 0 0 वाला कंसिडर करता तो अपने को मिल जाता P प्लस Q बार. ठीक है, और ये वाला मिल जाता अपने को P बार प्लस Q, अगर हम लोग 0 0 वाला लेता तो. ठीक है, फिर हमको क्या करना पड़ता, यहाँ से हमको निकालना पड़ता P प्लस Q बार. जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो इसके बदले में यहाँ पे डॉट आ जाएगा, डॉट आके P बार प्लस Q आएगा और फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता. ठीक है, P इम्प्लीके बाई कंडीशनल Q निकालने के लिए. तो दिस इज इक्वल टू, अगर P बार इंटू P करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो P बार Q बार, आंसर सेम ही आएगा, P बार Q बार. और इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा प्लस PQ, और Q इंटू Q बार होता है 0. तो मेरा ये सेम चीज़ आ गया, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, राइट. ये पूरा सेम है, राइट. ओके ओके. ठीक है, तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं. तो वैसे उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, 1 1 करने से एक बार में निकल रहा है, तो अपने को मेहनत करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस. ठीक है. अच्छा, इसमें प्रोपोजिशनल लॉज में भी जो बुलियन लॉज हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं. ठीक है. ठीक. अब
अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ समझने वाला चीज़ है, जैसे यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ का होता है, ठीक है ना। ओके। तो जैसे एक टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी। मैं लिख देता हूँ सारा एक एक करके, फिर मैं समझाता हूँ। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी। तो चलो मैं लिखता हूँ पहले, उसके बाद समझाता हूँ धीरे धीरे करके। एक टर्म होता है कंटिंजेंसी, सम रिलेटेड टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज लिख देते हैं, टर्मिनोलॉजीज। और नंबर 1 है कंटिंजेंसी। जी, कंटिंजेंसी, CI। The proposition, the proposition that have combination of ones and zeros, ones and zeros in their truth table column, their truth table column are called contingencies, मतलब अगर कोई ट्रूथ टेबल है, उसमें 1 और 0 का कॉलम में 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन है, राइट, हाँ। सो दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। ठीक है, मतलब जैसे ये वाला जो तुम्हारा है, इसमें 1 एंड 0, उसका आउटपुट में 1 एंड 0 दोनों है, तो इट ओके। इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। ठीक है। अच्छा, अब एक और टर्म आता है, उसका नाम है टोटोलॉजी, टी ओ टोटोलॉजी, LOGIES। The proposition OSI having nothing but once their truth table column, their column in their truth table column are called tautologies. Logies called tautologies. Number 3, contradiction. तो contradiction क्या होता है कि the proposition having contradiction, और ये 1 के बदले 0 होगा। ठीक है, उसके कॉलम में सिर्फ आउटपुट कॉलम में सिर्फ 0 अगर आ जाए सारे के सारे, तो वी कॉल इट कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। ओके। फिर एक होता है कंसिस्टेंट स्टेटमेंट। सो consistent, two statements
two statements are consistent if and only if, and only if their conjunction is not a contradiction. Their conjunction is not a contradiction. तो हम लोग उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। नंबर 5 जो है वो है कन्वर्स। The converse of a conditional proposition is the converse of conditional proposition is determined by interchanging antecedent by interchanging the antecedent antecedent and consequent of given conditional. It results into a new conditional. Example, converse of P implication Q is Q implication P. Thus, or that is if 6 नहीं चाहिए, that is if P is raining, Q sky is not clear. So then P implication Q is equal to, if it is raining, then sky is not clear. ये होगा ना, और its converse will be new conditional, new conditional as given below, तो वो हो जाएगा तुम्हारा Q implication of P
Q implication of P is equal to if sky is not clear, then it is raining. अनुष्का, यहाँ पर क्या है कि वी आर डूइंग मैथमेटिक्स, राइट? यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे इफ देन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके जो कीवर्ड्स है ना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? इफ देन। हम सेंटेंस को उसी फॉर्म में लिख देगा, ठीक है ना? मतलब सेम हो नहीं हो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मतलब गलत भी हो सकता है, उसका ग्रामेटिकल मीनिंग रॉन्ग, इंग्लिश ग्रामर में उसका मीनिंग रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली वो राइट है, ठीक है? ओके ठीक है, समझ में है? हाँ तो हाँ वो कोई दिक्कत का बात नहीं है। हो सकता है बहुत बारी बच्चा लोग हंस देता है, लेकिन वो मैथमेटिकली करेक्ट होता है, टीचर करेक्ट दे देगा, ठीक है? ठीक। क्योंकि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा होता है ना, और फिर कुछ लोगों को ऑड लग सकता है। तो बट उसका इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है इफ एंड देन, राइट? मेरे को क्या बोला है? मेरे को मैथ्स का रूल फॉलो करना है, मेरे को इंग्लिश ग्रामर का रूल नहीं फॉलो करना। ये पी था, ये क्यू था, तो कन्वर्ट्स करेंगे तो उसको वो चेंज हो जाएगा ना, क्यू पी बन जाएगा, और मतलब ये कन्वर्स जो है वो ये है, दिस इज द कन्वर्स। तो उसमें ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज वैल्यू, दिस इज ये पी का वैल्यू है, ये क्यू का वैल्यू है, राइट? दिस इज अ वैल्यू, राइट? एंड दिस हम लोग को ये वैल्यू को इंटरचेंज करना है, ठीक है? ओके और ये एक ऑपरेशन है, इम्प्लीकेशन इज द ऑपरेशन, राइट? ठीक है, समझ में है? तो ये हो गया कन्वर्स। फिर एक और है, कन्वर्स समझा दिया, एक और है, और क्या था यार? वर्स, इनवर्स ले लेते हैं, वर्स, इनवर्स, इनवर्स। So the inverse of a conditional proposition of a conditional proposition is another proposition, is another conditional conditional having negated antecedents and consequent antecedent antecedent having negated antecedent and consequent, that is negated antecedent and consequent, that is inverse of P implication Q. P implication Q is P bar implication Q bar. ओके Fine. So example, if ये ऊपर वाला ही ले लेते हैं। सो पी इम्प्लीकेशन तो ठीक है, इसका इन्वर्स चेंज करना पड़ेगा, इन वी ई आर एस ई इन्वर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चेंज करना पड़ेगा पूरा, पी बार implication of q bar, sorry, p bar implication of q bar, right, is equal to, यहाँ पे हो जाएगा if it is not raining, if it is not raining, then the sky is clear.
clear. Then the sky is clear. ठीक है, वहां से नॉट हट गया क्योंकि वो बार था ना, इसलिए नॉट हट गया। समझ में? यहाँ पे ये बार था ना, और यहाँ पे बार नहीं था। देख, यहाँ पे बार लग गया और यहाँ पे बार हट गया। ठीक ठीक। है, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन द स्काई इज क्लियर। एक और था, कंटिंजेंसी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंसिस्टेंट, कन्वर्स, इनवर्स, और एक था कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव नंबर 7। Number 7 is contra positive. CONTRA, contra, TIVE, contra positive. The contra positive, contra positive of a conditional is formed by creating another conditional that takes its antecedent and takes its antecedents as negated consequent of earlier consequent of earlier conditional, and consequent as negated antecedent of earlier conditional. That is positive of P implication Q is Q bar, ठीक है ना? not Q implication of not P, ठीक है ना? ये होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और Q बार implication of P बार। तो ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो यही है, यही सारा चीज़ है इसमें। वो लोग क्या करते हैं कि टीचर लोग कुछ सेंटेंसेस वगैरह देते हैं, उसको सॉल्व करना रहता है, और उसमें मतलब ये सब चीज़ें बतानी होती हैं कि ये टोटोलॉजी होगा कि नहीं होगा, कन्वर्स होगा कि होगा नहीं, इन्वर्स होगा कि होगा नहीं, ठीक है ना? जो आउटपुट आएगा ना, उसको वो लोग डिटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, समझ में है? ओके। तो मेरे पास ना इसका एक्सरसाइज है नहीं, ये है सारा चीज़, और भी इसमें एक दो चीज़ें शायद तक छूट गया है। तो मेरे को ये बुक का, तुम्हारा जो बुक है ना, उसका एक्सरसाइज एक बार भेजेगी तो आई कैन सजेस्ट यू टू डू सम प्रॉब्लम्स। एक्चुअली बुक अभी 2-3 दिन के लिए मैंने अपने फ्रेंड को दिया हुआ है, उसको उसका पेपर के लिए। अच्छा, तो ये कैसा फ्रेंड पाला है जो बुक नहीं खरीदता है? खरीदता, अरे वो अभी 10 में है सर, तो अच्छा, उसको 10, कुछ दिन के लिए चाहिए था। 11 का? हाँ, अरे, 10 में 11 का बुक से क्या करेगा?
नहीं सर, उसको प्रोग्राम चाहिए था डीडीए का। अच्छा डीडीए का तो एरी ही हटा दिया सिलेबस से 10 का। पता है, पर उसका ट्यूशन टीचर उसको करा रहा है 11 के लिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी चाहिए बुक तो ले जाते हो। तो मेरे को एक बार उसका फोटो भेज देना, तो हम तुमको उसका कौन कौन सा सम्स करना है क्या करना है मैं तुमको बता दूंगा। ठीक सर। क्योंकि मेरे पास ना इसका एक्सरसाइज नहीं है कुछ भी। ठीक है ठीक है, और मेरे मेरे। बुक में एक्सरसाइज मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। तो उसका एक्सरसाइज से सम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थियोरेटिकल चीज़ मैंने बताया है। हम्म। एंड अगर सम सॉल्व नहीं किया तो फिर सारा का सारा थ्योरी धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है। ठीक सर। तो मेरे को उसका फोटो भेज देना तो मैं तुमको बता दूंगा। और प्रॉब्लम होगा सम्स करते वक्त, प्रॉब्लम आता है इसमें बहुत ज़्यादा, तो मेरे से पूछ लेना सर ये वाला सम्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको बता दीजिए, तो मैं बताते रहूँगा, तो फिर ये चीज़ दिमाग में सेटल हो जाएगा। ठीक क्योंकि ठीक। ये 12th में भी आएगा ये वाला चीज़। हाँ हाँ। ठीक है। 12 में ये 4 नंबर का आता है। ओके। ठीक है। ठीक ठीक। चलो फिर। और एग्ज़ाम कब है तुम लोग का? ये वाला तो ट्यूसडे को है। ये वाला ट्यूसडे को ही है, मतलब आज हो गया सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। हम्म। तो बुक लेके एक्सरसाइज भेज देना मेरे को, फिर मैं बता दूंगा कौन कौन सा सम्स करना हाँ है। हाँ, कल सुबह दे देगा बुक। ठीक है फिर। ठीक। ठीक सर। चलो फिर। हाँ। ठीक है चलो फिर बाय। बाय सर।